یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے نہیں کہ آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اسی طرح عاصم منیر بھی کر دیں۔ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ کہف آپ کو نظر آ رہی ہے، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ پاکستانی فوج نے بندوق کی زور پہ چھینا ہے۔ پاکستانی عوام نے جو عمران خان کو ووٹ دیا تھا، پاکستانی فوج نے وہ سارا مینڈیٹ بندوق کی زور پہ چھینا ہے۔ افغانستان جا کر بھارت کی گود میں بیٹھ گیا ہے اور یہ خوفناک ہے۔ گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جب برا بھلا کہیں گے تو یہ دشمن کو بہت سوٹ کرتا ہے، تو اس پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت افغانستان کے فورن منسٹر موجود ہیں 9-10 دن کے دورے پہ۔ ان کا دہلی کا وزٹ، وہ بھی اتنا طویل، آپ کے خیال میں ایجنڈے کا اعلان نہیں کیا گیا، تو اصل ایجنڈا کیا ہے افغانستان کا انڈیا وزٹ؟ بالکل، دیکھیے افغانستان کو بھی تو سپورٹ چاہیے نا، تو انڈیا ہی دے سکتا ہے۔ اب وہ 9-10 دن کیا کریں گے؟ ایکسیپشنل ہے، انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہماری فیور میں تو وہ نہیں ہے ایمبیسی کھولنا، اور اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ اندرون ملک آپس میں نا اتفاقی اتنی ہے تو وہ تو سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت افغانستان کو شاید سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ دوستوں، افغانستان کے ودیش منتری عامر خان متاقی کی بھارت یاترا ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیہ وارتا کے بعد بھارت اور افغانستان نے ایک سنیکت بیان جاری کیا، جس میں پاکستان نے جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بتائے جانے پر آپتی جتائی۔ افغان ودیش منتری نے 22 اپریل کو جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملے کی بھی کڑی نندا کی، جس میں 26 نردوش ناگرکوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر نے اس کارروائی کے لیے اپنے افغان سمکش کا آبھار ویکت کیا۔ بھارت نے کابل میں اپنا دودتاواس پھر سے کھولنے کی بھی گھوشنا کی ہے۔ متاقی نے بھارت کو آشواسن دیا کہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال بھارت کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ پاکستان کو یہ سب دیکھ کر مرچی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ بھارت اور افغانستان کے اب وہ نیچرل الائے ہیں، فطری اتحادی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری تیاری کیا ہے؟ مجھے اب فکر ہے، میں نے پوسٹ بھی کیا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ جیسے ہم اس میں جا رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ ان کا ایک وہ ظاہر ہے اوپن اتحاد ہے، تو اب اللہ نہ کرے لیکن مجھے خدشہ ہے کہ مشرف دور کی طرح جو ایک خودکشی اور بم دھماکوں کی ایک لہر پورے ملک میں اٹھی تھی کراچی سے پشاور تک، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ لہر واپس نہ آ جائے۔ ان کا دہلی کا وزٹ، وہ بھی اتنا طویل، آپ کے خیال میں ایجنڈے کا اعلان نہیں کیا گیا، تو اصل ایجنڈا کیا ہے افغانستان کا انڈیا وزٹ؟ بالکل، دیکھیے افغانستان کو بھی تو سپورٹ چاہیے نا، تو انڈیا ہی دے سکتا ہے۔ انڈیا کو چاہیے کہ وہاں سے ان کا ایک فٹ ہولڈ تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فٹ ہولڈ واپس آئے جو کرزئی کے زمانے میں تھا، تو اس لیے جب سے طالبان آئے تو انڈیا کو تو کوئی خاص نہیں ڈال رہا تھا نا۔ اب دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کو لے کے اگینسٹ پاکستان، اور اس لیے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں، اور وہاں ان کی خاطر ہو رہی ہے اور ہر قسم کی چیز آفر ہو رہی ہے، ایمبولینسز آفر ہو رہی ہیں، اور ہتھیار بھی، اگر ہتھیار کو ضرورت نہیں ہے، پیسے اور قسم، پھر یہ کہ جی آپ بھیجیں یہاں ایجوکیشن ہونی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، سو یہ سارا کچھ اب، اور یہ بیسکلی جو افغانستان والے ہیں نا، یہ لیوریجنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان کو پٹ آف کرنے کے لیے کہ اگر آپ زیادہ پریشر ڈالیں گے تو ہم اور زیادہ دوستی کر لیں گے، اٹس دیٹ، کیونکہ انٹرسٹ ان کا بھی، انڈیا کا بھی وہی ہے اور ٹی ٹی پی کا بھی وہی ہے نا، کہ سپیک نہ چلے، پاکستان کو دونوں بارڈرز کے اوپر تنگ کیا جائے، کمزور کیا جائے، لڑائی جھگڑے کیے جائیں، تو آئی تھنک یہ سنجیدہ ہے مسئلہ۔ سرحدی علاقوں میں جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے، تفاہم ہونا چاہیے، اور جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد افغانستان کو امن دیا، افغانستان کو ترقی نصیب کیا، اس پر کمیونٹی نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان بھی اس خطے کے ایک آزاد ملک ہے، جب ادھر امن آیا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ افغانستان کا لوگ بھی حقدار ہے،
इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो IS है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील कि IS जो है वो आउटसाइड अफगानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है DG साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। बात यह है कि अगर ये लोग अफगानिस्तान में होता तो फिर उसके मुकाबले में कुछ करना जरूरी था। अभी तो सारे अफगानिस्तान में एक भी नहीं है, 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है बेदुन इमारत इस्लामी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये गुरोह और ये तंजीमें मौजूद नहीं है, उसकी वजूद ही नहीं है। ये 4 साल में मुकम्मल वो अफगानिस्तान से निकल गया, या जिसके खिलाफ हमने ऑपरेशन किया उसमें ख़त्म हुआ। तो जब नहीं है तो और ममालिक भी अपने मुल्कों के अंदर अगर ऐसा अमन लाए जैसे हम अफगानिस्तान में लाया है तो फिर सारे खिते में अमन है। अभी 8 महीने से अफगानिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या भी पेश नहीं आया है। 4 सालों के दौरान में अफगान सरजमीन से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये बेहतरीन सबूत है कि हमने पेश किया है। अगर हम ऐसा सबूत पेश करता है तो सारे खिते में अमन। तो ये मेरा ख्याल है अब आप देखिएगा अगले 3 माह के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी पावर स्ट्रगल हो जाएगी एंड सम थिंग्स विल हैपन। जी हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद पनप रहा है। इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर अंतरिम अफगान सरकार क्षेत्र और उसके बाहर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। इस बीच अफगान विदेश मंत्री ने भी अफगानिस्तान में हुए कई विस्फोटों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जा सकता। मुत्ताकी ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, पाकिस्तान की यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा। 40 साल बाद अफगानिस्तान शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि अफगान विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली मुलाकात थी।
इस दौरान मुत्ताकी ने भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और किसी को भी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं करने देगा। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान एक बार फिर वैश्विक शक्तियों के ध्यान का केंद्र बनता दिख रहा है, भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा अफगानिस्तान को पड़ोसी देश बताकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को साफ संकेत दिया है कि वह अधिकृत कश्मीर के संबंध में अपनी नीति पर अडिग है। मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और आमिर खान मुत्तकी के बीच हुई मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मचा दी है। लेकिन हमने एहसान क्या किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अगर वो ये भी बता देते तो अच्छा था। जो 20 साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया था? या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है, जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ इंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है। हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को सर मैं बात कर लूं, आपको कम से कम आर्मी में इतनी तो मैनर्स सिखाए होंगे कि अपनी बारी पे बात करें, अगर नहीं सिखाए तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखने की जरूरत है, और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला है। अच्छा, ये आरजू मोदी साहबा ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था, हमको ही फ्री में नहीं करते। आरजू मोदी जी मुझे बात करने देना, अभी मैनर सिखा रहे हैं। आरजू काज़मी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है, और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काज़मी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम से कम आवाज तो जाए। नाउ आई नो, मैं समझता रहा कि शायद आप कोई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की तर्जुमान है, और ये आपका नाम मुझे किसी ने बताया था। आई एम सॉरी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों को 40 साल तक पनाह दी। अब जिनको पाकिस्तान निकाल रहा है, अब इंडिया की बारी है कि ईरान भी निकाल रहा है, उन्हें आप रख लें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी तमिल टाइगर्स वाली स्टोरी आप बना लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आपकी दाल गलेगी। मुल्ला मुत्तकी के बारे में आप बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों। जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए, तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वरना इससे पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा भाई है, हम लोग एक ही कंट्री हैं, और हमारा बल्कि 5वां सूबा तक। और इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी, उस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेके देगी भारत से, ये बात भी की जा रही थी। तो अब हुआ ये कि जब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है, वो कश्मीर तो क्या खाक लेके देंगे। देखना यह है कि दोनों देशों के रिश्ते किस हद तक आगे बढ़ पाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।